Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Literature Unveiled. So, today we are going to be discussing psychoanalytic criticism. So, let's get started. So, first of all, we're going to define psychoanalytic criticism. It is a form of literary criticism which uses some of the techniques of psychoanalysis in the interpretation of literature. जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसमें हम साइको एनालिसिस की टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि हम लिटरेचर को इंटरप्रेट कर सकें. Then comes psychoanalysis. It is a form of therapy which aims to cure mental disorders by interpreting the interaction of conscious and unconscious elements in mind. इसका ये मतलब है कि साइको एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए यूज़ होती है, जिसमें हम अपने इन अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के एलिमेंट्स के जो इंटरेक्शंस हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं. ये प्रैक्टिस जौन सी है इस पे बेस करती है कि हमारा माइंड, हमारे इंस्टिंक्ट्स और हमारी सेक्सुअलिटी कैसे वर्क करती है. अब ये जो थेरीज़ हैं कि हमारे माइंड, हमारे इंस्टिंक्ट्स और सेक्सुअलिटी वर्क कैसे करती है, ये सारी थेरीज़ एक ऑस्ट्रियन बंदे ने दी थी और इसका नाम था सिगमंड फ्राइड. These theories of Sigmund Freud are based upon the notion of unconscious, which is a part of mind beyond consciousness, which nevertheless has strong influence upon our actions. This means that हमारे जो अनकॉन्शियस है वो भी हमारे एक ब्रेन का, हमारे माइंड का एक पार्ट है जो हमारे एक्शंस के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है. एज वी नो फॉर द फैक्ट दैट सिगमंड फ्राइड वॉज अ psychoanalytic, and he has given a lot of theories on his psychoanalysis of different patients and everyone. He has also given the idea of repression, which is forgetting or ignoring of unresolved conflicts, unadmitted desires, or traumatic past events so that they are forced out of conscious awareness and into the realm of unconscious. इसका ये मतलब है कि हम उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश करते हैं या इग्नोर कर देते हैं अपने जहन में जो हमारे ज़िंदगी में अनरिजॉल्व रह जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, या जौन से हमारे ट्रोमेटिक जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस होते हैं या जौन से डिज़ायर्स हमने कभी एडमिट नहीं किए होते, हम उनको अपनी अनकॉन्शियस में फोर्स कर देते हैं अपनी कॉन्शियसनेस में से. Now comes the process of sublimation. In this, repressed material is promoted into something grander or is disguised as something noble. For example, हमारी जो sexual urges होती हैं उनको हम इग्नोर करने के लिए religion का सहारा लेते हैं, तो it is also the process of sublimation. Next comes the process of infantile sexuality, which is the notion that sexuality begins not at puberty with the physical maturing, but it begins in infancy while the infant is in mother's womb. So we see the example of Oedipus complex, where he wanted to eliminate his father to get to his mother, which is also a psychoanalytic critical theory according to critics. Next come the psychic processes by Freud. First is the transference. It is the phenomena whereby patients under analysis redirect the emotions recalled in analysis towards the psychoanalyst. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम द साइको एनालिस्ट. जो पर्सन जिसका मैं एनालिसिस कर रही होंगी वो अपनी रिजेंटमेंट, अपना गुस्सा जिस बंदे के बारे में फ़ील कर रहा होगा वो उसको छोड़ के उसका सारा गुस्सा और रिजेंटमेंट मेरे ऊपर डायरेक्ट कर देगा, वो मुझ पे ट्रांसफ़र कर देगा. तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसफरेंस. Next process is projection, when the aspects of ourselves are not recognized as part of ourselves but are attributed to another. Our own desires antagonisms may be disowned. तो इसका ये मतलब है कि हमारे जो भी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं हमारी पर्सनालिटी के, वो हम खुद ओन करने की बजाय किसी और के ऊपर लगा दें कि दिस इज़ हिज कैरेक्टरिस्टिक, हम उसको डिसओन कर दें. तो इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं कि हम उनको खुद के लिए रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं, हम उनको किसी और के साथ या उसके किसी और के कैरेक्टर के साथ एसोसिएट कर दें अपने नेगेटिव बिहेवियर्स को. नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्क्रीन मेमोरी. इट इज़ ट्रिवियल और इनकॉन्सिक्वेंशियल मेमोरी हुज फंक्शन इज़ टू ऑब्लिटरेट अ मोर सिग्निफिकेंट वन. मेमोरी की वो फॉर्म होती है स्क्रीन मेमोरी जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फ्रेगमेंटेड फॉर्म्स में होती है, जो इनकॉन्सिक्वेंशियल फॉर्म्स में होती है, जिसको हम अपने कॉन्शियस में नहीं ला पाते.
A well-known example of screen memory is parapraxis. It is the repressed material in the unconscious mind which finds an outlet through such everyday phenomena as a slip of tongue or a slip of pen or unintended actions. अब इसका ये मतलब है कि वो अनकॉन्शियस या फ्रेगमेंटेड मेमोरी जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट है वो पैराप्रैक्सिस यानी कि स्लिप ऑफ टंग वगैरह के थ्रू हमारी ज़ुबान पे आ जाती है या हमें याद आ जाती है. उसके बाद आता है ड्रीम वर्क. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच रियल इवेंट्स और डिज़ायर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ड्रीम इमेजेस. इसका ये मतलब है कि हमारे जहन में जो भी डिज़ायर्स या रियल इवेंट्स हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं वो हमारे ड्रीम्स में एक इमेज के थ्रू डिपिक्ट हो जाते हैं, तो इसको हम ड्रीम वर्क कहते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. इवेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अनदर विच इज़ इन सम वे लिंक्ड और एसोसिएटेड विद इट, perhaps because of a similar word or by some form of symbolic substitution. अब इसका ये मतलब है कि हमारे लाइफ में कोई एक बंदा या हमारी लाइफ का जो एक कोई इवेंट है वो हम किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट कर दें क्योंकि उसमें कोई सिमिलर चीज़ हो, हम उनको सब्सिट्यूट कर दें अपने ड्रीम में किसी और चीज़ के साथ जिससे वो क्लोजली लिंक्ड है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. Next comes condensation, whereby a number of people, events, or meanings are combined and represented by a single shape in the dream. Thus, characters, motivation, and events are presented in dreams in a very literary way. इसको हम इस तरह लेते हैं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम आवर लाइफ या फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स जो हमारी लाइफ में हुए हैं हम उनको अपने ड्रीम में एक सिंगल इमेज के तौर पर देखते हैं और हमें उस इमेज से सारा क्लियर हो जाता है कि ये इस तरह से चल रहा है क्योंकि वो हमारी रियल लाइफ में हैपन हुए होते हैं या फिर वो हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं. तो हम अपनी रियल लाइफ के इवेंट्स और लोगों को कंडेंस कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं अपने ड्रीम के अंदर और वो एक सिंगल इमेज के तौर पे हमारे ड्रीम में हमें शो होती है. Now we are about to see similarities between dreams and literature. First of all, they don't make explicit statements, यानी कि कोई open और clear statements नहीं होती. Both tend to communicate indirectly, which is like they don't communicate directly, avoiding open statements, representing meanings through concrete embodiments of time, person, or place. In a dream, it is in the form of an image, while in literature, it is in the form of writings. So it is completely similar to each other. So I guess that's all about the first part of psychoanalysis. Please like, subscribe, and share as much as you can. I'm going to see you in my next video. Bye.